تو ہمارا سارا اپوزیشن، کچھ ہمارے جو اتحادی بھی تھے، وہ ایک پیج پہ تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو برا منصوبہ ہے، اس ملک کے خواتین کو ہم بیگرز بنا رہے ہیں، اور یہ پورا منصوبہ تنقید کا نشانہ بنا. لیکن صدر زرداری کا کمٹمنٹ تھا، جو اس پروگرام کو صدر زرداری نے پرسنلی نہ صرف مانیٹر کیا، سپورٹ کیا، بٹ انشور کر دیا تھا کہ پہلے سال سے لے کے 5واں سال تک اس پروگرام کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کر دیا، اور اس ملک کے غریب عورتوں تک مالی مدد پہنچائے تھے. اس وقت جب گلوبل ریسیشن تھا، جب دنیا بھر میں فائنینشیل ریسیشن تھا، تو پاکستان میں بھی تاریخی مہنگائی تھا، پاکستان میں بھی غربت اور بے روزگاری تھا، لیکن ہمارے دور میں ہم نے پاکستان کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، ہم نے پاکستان کے عوام کو مزید تکلیف میں نہیں دکھیلا تھا، اور ہم نے اس حد تک یہ تھے کہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انٹروڈیوس کر کے کچھ پاکستان کے اپنے وسائل سے، کچھ باہر کے وسائل کو استعمال کر کے غریب ترین عورتوں کو فائدہ پہنچائے تھے. اور ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جس کا آپ کا علم ہے، یہ جو کیش ٹرانسفر کمپوننٹ ہے وہ تو صرف ایک کمپوننٹ تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ وسیلہ حق تھا، وسیلہ روزگار تھا، وسیلہ تعلیم تھا، وسیلہ صحت تھا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ سارے جو منصوبے تھے وہ ٹارگیٹڈ ہوتے. اس لیے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے پاورٹی سروے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کروایا تھا. ڈاٹا ہمارے پاس موجود تھا، اسی ڈاٹا کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ وسیلہ تعلیم کے تھرو ان بچوں کو، ان خاندانوں کو پیسہ، ایک رقم پہنچا سکتے تھے جب وہ اپنے بیٹیاں کو اسکول بھیجتے تھے. وسیلہ صحت کے تھرو آپ ایک ہیلتھ کیئر کے لیے انہی ٹارگیٹڈ کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا سکتے تھے. ایسے وہ دوسرا پروگرام جس کا میں نے ذکر کیا. آج تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس کہا جاتا ہے، وسیلہ صحت کو وزیر اعظم کا یا صحت کا انصاف کہا جاتا ہے، میاں صاحب کے دور میں وزیر اعظم کا ہیلتھ پروگرام کہا گیا. مگر اصل میں یہ بی بی شہید کے منشور کے پروگرامز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیے، اور ہمارے سارے اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پروگرامز ختم نہیں کر سکتے تھے. اور جب ہم حکومت میں تھے غریب عوام کو اس پروگرام سے فائدہ پہنچ رہا تھا. آج بھی اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں، اگر پاکستان بھر میں کوئی سوشل سیفٹی پروگرام موجود ہے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں. لیکن ایک اور پروگرام ہے جو اب 2008-9 سے لے کے آج تک سندھ حکومت اس پہ محنت کر رہی ہے. And I think that that program is one of the most successful programs of the Sindh government. And آپ کو شاید اس کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہ ہو. جو ہمارا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، رورل سپورٹ پروگرام ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک قدم آگے چلتا ہے. اور ہمارا پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو اب تقریباً پورے سندھ کے دیہاتوں بارنگ 2 ڈسٹرکٹس میں پہنچ چکا ہے، اس پروگرام کا بھی اب ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت 13 لاکھ عورتوں کو فائدہ مل رہا ہے. There are 13 million families جو اس پروگرام سے بینیفٹ کر رہے ہیں. And through the People's Poverty Reduction Program ہم کیش ٹرانسفر نہیں مگر بلا سود قرضہ دیتے ہیں. اور وہ بلا سود قرضہ
चाहे एक छोटा सतह पे हो ताकि वो अपना ही इनकम को इंक्रीज कर सके, या थोड़ा बड़ा सतह पे हो ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। और इस प्रोग्राम के थ्रू 13 लाख औरतें जो इस प्रोग्राम से पहले गुर्बत में थे, कोई उनका अपना कमाई का तरीका नहीं था, आज वो पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम की वजह से कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और ना सिर्फ अपने का लेकिन अपने ख़ानदान का ख्याल रख रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो होता है इनकलाब जो शायद आपको नज़र नहीं आए, लेकिन सिंध के गरीब औरतों ये कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि सिंध के ख़वातीन में वो ताकत है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है कि एक छोटा सा मामूली मदद के साथ वो पूरी मईशत में इनकलाब ले आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये जो बिला सूद कर्ज़े हम देते हैं, आप बिगेस्ट बैंक्स ऑफ पाकिस्तान का रैकेट उठा के देखें, जो वो लोन्स देते हैं, अरबपतियों को लोन्स देते हैं, बैंकिंग सेक्टर को लोन्स देते हैं, कंस्ट्रक्शन सेंटर को अरबों रुपए का लोन्स देते हैं, मिल मालिकान को लोन्स देते हैं। आप उनका रिकवरी रेट चेक करें। और पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम का जो बिला सूद कर्जा हम अपने गरीब तरीन देहात के औरतों को देते हैं, हमारा रिकवरी रेट से कंपेयर करें, हमारा रिकवरी रेट 99% है, जिसका मतलब है कि वो औरतों जिनको ये फैसिलिटी मिल रहा है वो इतना कामयाब हो रहे हैं। I see that Asad Saeed doubts my figures. I'll prove that I am right. 99% रिकवरी रेट है। तो मतलब वो औरतें इतना कामयाब हो रहे हैं इस पैसा से कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना ख़ानदान का ख्याल भी रख रहे हैं, और हुकूमत का पैसा हुकूमत को वापस भी दे रहे हैं। तो ये इनका हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं, और हम समझते हैं कि यही वजह है कि हम हुकूमत में होते हैं कि इस मुल्क के गरीब तरीन जो तबका है उनका हमने ख्याल रखना है। और सिंध हुकूमत पिछले 5 साल पहले को, मैं आपको 8 साल पहले मैं आपका I'll sort of revert your memories to, बहुत तंकीद का निशाना होता था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पे। तो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स एंड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है सिंध के, जो 2013 टू 2018 तक है। तो हमारा ये प्रोग्राम जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, इससे पहले के हमारा जो परफॉर्मेंस है इस इशू को, जो हमने पूरा एक वीव मेड ऑब्वियसली जब आप सब ने निशानदही की इस मसला का हमारा तवज्जो दिलवाए हैं, तो बहुत एफर्ट्स किए गए हैं कि सिंध भर में हम इस मसले को एड्रेस करें। तो जो फ्रॉम 2013 टू 2018 जो आपके ये जो फिगर्स है ऑल्सो USAID और दूसरे मुख्तलिफ इदारे के फिगर्स है, ये मेरे फिगर्स नहीं हैं। तो उनका जो एनालिसिस है कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पंजाब में 2013 से लेके 2018 तक 19% कम हुआ। पख्तूनख्वा में 2013 से लेके 2018 तक जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 2% उसका इजाफा हुआ। और सिंध में 2013 से लेके 2018 तक हमारा 30% कमी हुई, 30% गिरा है हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 5 साल के कम के जो बच्चे हैं, वो पंजाब में 17% कम हुआ है 2013 से लेके 2018 तक। KP में
9% कम हुआ है 2013 से लेके 2018 तक, और सिंध में 19% कम हुआ है 2013 से लेके 18 तक। तो दोनों जो हमारा फोकस एरियाज थे, नियोनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, हमने बाकी सूबों से ज़्यादा कामयाबी दिखाया है, लेकिन ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। और आप सोचे 2018 के बाद हुआ क्या है? एक जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, जिस महंगाई का हम आज जिक्र कर रहे हैं, when you translate that into food inflation for urban and rural areas, वो तो काफ़ी ज़्यादा उसका इजाफ़ा हुआ है इन 3 सालों में। गुर्बत का, महंगाई का जो सबसे ज़्यादा बोझ होता है वो हमारे देहातों में हमारे औरतें, हमारे आम आदमी उठाता है। एंड आई डोंट नो, अब तो वो हमारे पास डाटा नहीं है, मगर मेरा शक है, मेरा डर है कि अगर आज हम ये एनालिसिस सारे सूबे में करते हैं तो वी वुड सी कि हमारा हर सूबा में नुकसान हुआ होगा, और इस मुआशी बहरान की वजह से मदर्स को नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो हम उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं, एंड हम अपना परफॉर्मेंस में इजाफा करना चाहते हैं। ये हमारा मंशूर का भी वादा था कि हम मदर्स एंड चाइल्ड का प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए जो सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा शुरू किया है, जो 3 साल की मेहनत का नतीजा है, और मैं हारिस गजदर को, डॉक्टर अजहर फजल पेचव को और सीएम सिंध को का शुक्रिया भी कहना चाह रहा हूँ, और आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि जितना मेहनत और कोशिश इस मंसूबा में किया है, ये सब उस मेहनत के पीछे हैं। और आज ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं, we're going to target the child and the mother for the first 1,000 days of their lives. And we're going to try and ensure कि कंसेप्शन से लेके 2 साल की उम्र तक हमारा और उस वालदा का, उनका बच्चा का कांटेक्ट रहे। हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी को एड्रेस करने के लिए, सेहत को एड्रेस करने के लिए, इनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सिंध भर में वैसे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। वी हैव आवर बेसिक हेल्थ यूनिट्स। उन बेसिक हेल्थ यूनिट्स में उनको मुफ्त दवाई मिल सकता है। उस बच्चा का अगर वो वहाँ जाके वो पैदा होता है, उनको वो फैसिलिटी भी मिल सकते हैं। लेकिन हमारा जो मसला था कि ख़ास तौर पे आजकल मुआशी मुश्किलात की वजह से ये सारी सहूलतें के बावजूद वो औरतें पहुँचते नहीं हैं, और जब नहीं पहुँचते हैं, गांव में, घर में डिलीवरी होता है, बच्चा का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको वो सारे इनॉक्यूलेशंस, वैक्सीनेशंस नहीं मिलते हैं, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन को मॉनिटर नहीं होता है, तो देन देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क कि वालदा को नुकसान हो, एंड देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क कि बच्चा को नुकसान हो। तो इस मसला का हल जो हमने निकाला है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट 1,000 days we will incentivize the mothers to come to the basic health units, and हम इनको अगर for each visit to the basic health unit during this process, the registered mothers will receive 1,000 rupees. When they give birth at the facility, तो घर में नहीं, गांव में नहीं, लेकिन अगर वो बच्चा का पैदाइश हमारा facility पे होता है, तो they'll get 4,000 rupees. And this way, we continue to engage with the mother and child. We ensure that the child gets all the vaccinations. The mother is in proper health. Both the mother and child are receiving the nutrition they need and the support they need. And जो हम वसाइल पहुंचा रहे हैं, जो हम थोड़ा सा इमदाद दे रहे हैं, वो या उनका ट्रांसपोर्ट के लिए या for their nutrition के लिए उस पर वो खर्च हो. And we will spend
around 20,000 rupees per mother for this space of 1,000 days. Magar usme, agar we can ensure the health and safety of the child for the first 1,000 days, researchers shown कि फिर उनका बाकी जो ज़िंदगी है वो सेहतयाब चलता है, वो बेहतर चलता है. तो ये जो प्रोग्राम आज शुरू हो रहा है तो इतना फ्लैशी नहीं है, मेट्रो बस नहीं है, लेकिन इससे इनकलाब शुरू होता है. And this program will just has started in 2 union councils. 2 union councils से लेके 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने. No, when are you going to the districts? 2 months. Districts is about 3 महीने में 2 districts, उमरकोट और थरपारकर को इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे और फिर 2 साल में बाकी सूबा को हम कवर कर लेंगे. At our peak we're expecting 1 million women to benefit from this program. And अगर हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला कामयाब हुआ तो वो जो हमारा ख़र्चा है कि हमारा ये जो कामयाबियाँ हैं इनको इस मुआशी बहरान से, इमरान की महंगाई से, इमरान की गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से जो नुकसान होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि सिंध के बच्चे, सिंध के जो वालिदैन हैं उनको ये फैसिलिटी पहुँचे और हम we can continue to outperform the other provinces in this area. हम समझते हैं कि ये होता है हुकूमत करना, ये होता है डिलीवर करना, ये हमारे लिए गुड गवर्नेंस है और हम समझते हैं कि हमें इसी पे फोकस करना चाहिए. इन्हीं एरियाज़ में जो शायद ज़्यादा नज़र ना आए टीवी स्क्रीन्स पे, लेकिन जहाँ तक अवाम की पेट और जेब की बात है वहाँ ये इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा. I once again would like to thank Dr. Azra Fazal Pecho, Haris Gazdar and CM Sindh और ये हमारा इंशाल्लाह ताला कामयाब. आप देखो, आप सवाल पूछेंगे पता नहीं जजेस पे, पता नहीं दूसरी चीज़ों पे. पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में है. मैं चाहता हूँ कि उनको ये बात पहुँचे कि सिंध हुकूमत उनके साथ खड़े हैं. सिंध हुकूमत 1000 दिन के लिए उनके बच्चे और वालदा का ख्याल रखेंगे. आपके सवाल का मैं जवाब दूँगा, फिर वो हेडलाइंस बनेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगा, तो वो मसला होगा. लेकिन अब मेरा ख्याल में हमारा स्केड्यूल में ये है कि हमारा चाय होगा, हमारा टी होगा, तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑफ द कैमरा जो भी बातें हैं हम वो भी कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.